हाँ बोलो. Give word or a term or a phrase for each of the following statement. Person who maintains petty cash book. Petty cash है. Perfect. A bank account which the businessmen prefer to open. Current account. करंट अकाउंट होता है बराबर ना. पेटी कैश बुक इन विच द पेमेंट साइड इज रूल्ड इन मल्टीपल कॉलम्स. ऐसा पेटी कैश बुक जिसमें पेमेंट साइड को राइट आप अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करते हो. यस वी एनालाइज द पेमेंट्स, उसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक. एनालिटिकल पेटी कैश बुक. petty cash book. Subsidiary books in which only credit purchase of goods is recorded. Subsidiary books in which only credit purchase of goods is recorded. बोलो. Purchase book. Perfect. Then subsidiary book in which return of goods sold on credit is recorded. Sales return book. Yes. The entry which is recorded on the both side of the cash book. Contra entry. ठीक है. आगे. Name the account which encourages personal savings. Savings account obviously. Then a note issued by buyer to seller giving full details of goods return. जब buyer seller को कोई नोट देता है उसको क्या बोलते हैं? Buyer gives note to seller. उस नोट को क्या बोलते हैं? Yes, debit note. Perfect. Buyer के लिए seller कौन रहता है? Creditor. तो उसको जब गुड्स रिटर्न करेगा तो रिवर्स होगा. तो रिवर्स मतलब डेबिट करेगा, क्रेडिटर को डेबिट मारेगा तो रहेगी डेबिट नोट. आगे. नोट इश्यूड बाय सेलर ऑन रिसीट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम द कस्टमर. नोट इश्यूड बाय सेलर डेटर को क्रेडिट नोट देगा बराबर. डेटर को क्रेडिट नोट देगा बराबर ना. Then name the bank account on which overdraft facility is given to account holder. Current. करंट अकाउंट. ठीक है. आगे. Select the most appropriate answer from the alternatives given below. ठीक है. Cash column of the cash book can never have which balance? Credit balance, debit balance, zero balance or none of the above. Cash column क्या कौन सा बैलेंस बोला? Credit. Can never have credit balance. It always have which balance? Debit. Cash always debit. Bank column में have debit or credit balance. Right? Understand? बैंक के केस में कुछ भी हो सकता है because bank is a personal account kind of. Debtor भी हो सकता है, creditor भी हो सकता है. Sometimes generally we have favorable balance in bank. हमारे पैसे बैंक में रहते हैं. But in case of overdraft facility, we have withdrawn more than what we have. तो उस केस में it is a kind of loan. हमें बैंक को रिपे करना होगा. ठीक है. Then can never have credit balance. An entry recorded on the both sides of the cash book is called as contra. Opening entry कौन सी होती है? Opening entry कौन सी होती थी? यहाँ पे ऑप्शन में opening entry है. Do you remember? Opening entry कौन सी होती थी? Anyone? Opening entry कौन सी? अनबोल बोल कुछ कोई टेंशन नहीं. बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली कौन सी एंट्री होती थी? assets account debit to liabilities account credit to capital account credit. आप क्या एंट्री? फर्स्ट एंट्री ऑफ द ईयर इज ऑल assets account debit. लास्ट ईयर के assets and liabilities ब्रॉट डाउन करोगे ना, ऑल assets account debit to liabilities to capital. वो जो एंट्री होती है ना वो ओपनिंग एंट्री होती है. देन
आगे, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा? इनवर्ड इनवाइस, आउटवर्ड इनवाइस, वाउचर एंड कैश मेमो। सेल करते टाइम कौन सा इनवाइस रहेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? वी विल इश्यू इनवाइस ना, आउटवर्ड, या उसको सेल्स इनवाइस भी बोलते हैं। मोर फेमस वर्ड और मोर यूज वर्ड इज ए सेल्स इनवाइस, ठीक है। देन क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी, नहीं मैडम, मशीनरी तो फिक्स असेट, सो परचेस बुक में नहीं आएगा, जनरल प्रॉपर में आएगा। कैश ट्रांजैक्शन नहीं, इसलिए कैश बुक में नहीं, गुड्स नहीं इसलिए परचेस बुक में नहीं, तो कहां पे चला गया, जनरल प्रॉपर में। सब डिविजन ऑफ द जर्नल इज नोन एज डैश डैश बुक, subsidiary books. Then additional cash introduced in the business is recorded in cash book, obviously cash comes in na, so cash book. Entry for bad debts is recorded in the journal proper. एंट्री क्या आती है, बैड डेट्स रिलेटेड, ना ही कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में, ना ही परचेस गुड्स के रिलेटेड है, ये परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न में आएगा, ना ही बिल्स के ट्रांजैक्शन से बिल्स पेबल, तो ये आएगा जनरल प्रॉपर। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक, कोई हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, बराबर, इज रिकॉर्डेड ऑन डैश डैश साइड ऑफ द कैश बुक। बोलो, वेदर रिसीट साइड, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड और बोथ साइड, जो कुछ भी। रिसीट, कस्टमर डिपॉजिट इन आवर बैंक, सो वी रिसीव्ड मनी ना, सो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी और डेटर एज द केस में बी, so it will be recorded in the receipt side, in which column, cash column or bank column? बैंक, पैसे किस में आए, बैंक में, receipt. The person who draws check and signs the check, कौन होगा? The person who draws the check, drawer, drawee, payee is the drawer. Drawee कौन होता है रे? ड्रॉवी कौन होता है? बैंक होती है। पे कौन होता है? जिसके नाम पे चेक निकाला है। पे तो समझ में आता है, राइट, इन फेवर ऑफ होम, बराबर ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चेक्स आर दोस बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें ड्रॉवी बैंक होती है। बिल्स ऑफ चेक्स आर आल्सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक टाइप है, यू इन 12th यू विल लर्न चेक्स इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें ड्रॉवी बैंक होती है उसको चेक बोलते हैं। तो ड्रॉवी मतलब जिसको हमने इंस्ट्रक्शन दिए मेक द पेमेंट, वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू बैंक टू मेक द पेमेंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। पेई को पेमेंट करे, हमने बैंक को बोला है, तो जिसको आप ऑर्डर देते हो, जिसको आप इंस्ट्रक्शन देते हो, ड्रॉवी होता है। समझ में आ रहा है? वो होता है ड्रॉवी। सपोज एग्जांपल ए एंड बी, ए इज अ डेटर and B is a creditor, and B has to make payment to C. B and C में B is a debtor and C is a creditor, समझा? मतलब A has to make payment to B, B has to make payment to whom? कहीं ऐसे हो सकता है क्या कि B will ask A to make payment to C? Yes. B क्या बोलेगा? सपोज 10,000 का सब ट्रांजैक्शन है, बोलेगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू मी डायरेक्टली मेक पेमेंट टू सी ऑन माय बिहाफ, बराबर ना? तो बी के बुक्स में एंट्री क्या आएगी मैडम? इफ ए मेक्स पेमेंट टू सी ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो ए के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, बी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, सी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? हमने किया है, इसके मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ, क्या एंट्री आएगी? हाँ बराबर है, तू बराबर बोल रहा है। व्हाट विल द एंट्री? सी विल रिसीव द मनी फ्रॉम होम? ए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए आएगा बी, क्योंकि सी ने ट्रांजैक्शन किसके साथ किया था? अरे पेमेंट भले ही ये दे रहा है, बट सी का ए से कोई वास्ता नहीं है, तो सी के बुक्स में कौन रहेगा? बी। कैश अकाउंट डेबिट टू बी। अच्छा, बी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? सी अकाउंट डेबिट टू ए।
बराबर ना। एंड ए की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? C account debit to cash account. सी नहीं, Okay, B account बी, debit to cash. बी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप किसको पेमेंट करो फर्क नहीं पड़ता, आप किसके लिए पेमेंट करते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भले ही ए इज मेकिंग पेमेंट टू सी, बट वो बोलता है कि माय लाइबिलिटी टुवर्ड्स बी विल डिक्रीज। अब मुझे बी को नहीं पे करना है, दे रहा है ए को, बट बोल रहा है आई वोंट पे टू बी नाउ। सी हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम ए, बोलता है नाउ आई एम नॉट सपोज्ड टू रिकवर फ्रॉम बी। सो भले ही सी, ए एंड सी एक दूसरे को पैसे दे रहे, लाइक ए इज गिविंग मनी टू सी, but it is as good as making payment to B. C has received money from A, but it is as good as received from. तो ऐसे केसेस में बिल्स बनते हैं। क्या होगा कि A will draw bill on A and बोलेगा कि make the payment to C. तो इसमें A बन जाएगा ड्रॉवर, C बन जाएगा पे, B बन गया ड्रॉवर। वो इंस्ट्रक्शन देगा, किसको देगा इंस्ट्रक्शन? A को, और क्या बोलेगा? मेक द पेमेंट टू C. सो ये बन गया पे, जिसको पेमेंट मिलेगा वो पे, जिसने ड्रॉ किया है, और जो इंस्ट्रक्शन देता है वो ड्रॉवर, एंड जिसको इंस्ट्रक्शन दिया है ना आपने, द पर्सन हु इज सपोज्ड टू मेक द पेमेंट इज ड्रॉवी। या आप बोलोगे बी ने उसके बैंक को बोला है कि सी को पेमेंट करा। बी ने उसके बैंक को बोला है, बी ने चेक इशू किया है सी को, फिर सी उसके बैंक में डालेगा, उसकी बैंक हमारे बैंक को प्रेजेंट करेगी और हमारी बैंक उसको पेमेंट करेगी। तो जब आप B गिव्स चेक टू C, B ऑर्डर्स हिज बैंक, क्या ऑर्डर करता है? मेक द पेमेंट टू C। तो जिसको आपने ऑर्डर किया वो हो गया ड्रॉवी, बैंक। जिसने ड्रॉ किया है वो हो गया ड्रॉवर, एंड किसको पेमेंट करना है? तो बैंक की जगह कोई बंदा डाल दो तो भी एक इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Bills of exchange is nothing but checks, या checks are actually bills of exchange। मतलब जो चेक में सीखो ना वो bills of exchange, टेक्निकली उसको bills of exchange बोलते हैं। आगे, so drawer रहेगा the person who signs the check, drawee is a bank, pay is a person जिसके फेवर में आपने चेक निकाला है। ऑल ऑफ द नहीं है। आगे, a fixed amount is deposited for fixed period in dash dash deposit, fixed amount fixed interval के लिए fixed for a fixed period। State whether the following statements are true or false with the reasons। ठीक है, journal is book of secondary entry, true or false? It is a primary entry, सामने लिख लेना प्राइमरी। सेकेंडरी एंट्री कौन सी होती है? सेकेंडरी एंट्री का कौन सा बुक है? लेजर। जर्नल के बाद किस में जाते हो आप? लेजर में, राइट। Assets sold on credit are entered in the sales journal, false। Assets sold on credit are journal proper। परचेज सेल वाला ट्रांजैक्शन परचेज में कैसे आएगा? जर्नल प्रॉपर, जेपी। आगे, कैश एंड क्रेडिट परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक। बोलो, कैश एंड क्रेडिट परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक, व्हाट यू फील? बोथ? नो, एक्चुअली कैश परचेसेस इन कैश बुक, क्रेडिट परचेसेस इन परचेज बुक। यहां पे लिखो फॉल्स। कैश सेल्स आर रिकॉर्ड इन द सेल्स जर्नल, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल मतलब सेल्स बुक का, फॉल्स। किसमें रिकॉर्ड होते हैं मैडम? कैश बुक रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में। आगे, नेक्स्ट, कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रिसीट एंड पेमेंट। बोलो क्या है? कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश, ट्रू। आगे, ठीक है। Do you agree with the following statements? First, trade discount is recorded in the cash book. Trade discount recorded in cash book? No, that discount is cash discount. Trade discount कहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है। This is false. I disagree. बराबर। ट्रेड डिस्काउंट कहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है, किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। आगे, पेटी कैश बुक इज अ बुक हैविंग रिकॉर्ड ऑफ बिग पेमेंट्स। Actually, petty cash book is for the small petty expenses. Disagree.
जो रूटीन एक्सपेंसेस रहते हैं ना, वो रूटीन एक्सपेंसेस बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपेंसेस प्रॉपर। अगर कोई असेट परचेस करते हो, एडवांस देते हो, तो जर्नल कॉलम, लेजर कॉलम होता है लास्ट में, उस कॉलम में रिकॉर्ड होता है। सबसे लास्ट एनालिटिकल कैश बुक में सबसे लास्ट कॉलम था लेजर, इफ यू रिमेंबर, उस कॉलम में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। आगे पेटी कैश बुक का पर्पस पेटी एक्सपेंसेस को मेंटेन करना। नेक्स्ट, cash received is entered on the debit side of the cash book. Cash received is entered on the debit side of the cash book. Obviously, agree. Debit side is receipt side, बराबर ना? Cash account debit, bank account debit. Whenever you receive cash, transactions recorded on the debit and credit side of the cash book is called as contra entry. True or I agree? Credit purchase of machinery is entered in the purchase journal. Credit purchase of machinery journal proper. Disagree. आगे लिख लेना journal proper. Next, complete the following sentences. Cash book is dash dash journal. Cash book is a subsidiary journal. Yeah, journal is a secondary journal, subsidiary journal. देखो उन्होंने क्या लिखा है, subsidiary word यूज किया है या secondary किया है या प्रिंसिपल किया है, तीनों में से एक होगा। subsidiary ना, subsidiary. Let's start. Subsidiary journal. In journal proper, only dash dash discount is recorded. Only cash. ठीक है, आगे रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट टू सप्लायर्स विल बी एंटर्ड इन यस परचेस रिटर्न बुक और परचेस रिटर्न जर्नल. एसेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन, मैडम बोलो, एसेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर. ये देखो कितने बार रिपीट हुआ है. डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश एंड बैंक. Credit purchase of goods are recorded in purchase book. The cash book does not record dash dash transactions. Credit transactions. Credit balance shown by the bank column in the cash book is credit column. Credit balance क्या रहता है? कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? क्रेडिट इज मोर देन डेबिट. क्रेडिट इज मोर देन डेबिट ना, क्रेडिट टोटल इज मोर देन डेबिट, वही तो क्रेडिट बैलेंस रहता है. क्रेडिट साइड मतलब कौन सी? पेमेंट. कैश बुक में क्रेडिट साइड क्या रहेगी? पेमेंट इज मोर देन रिसीट्स. मतलब बैंक में पेमेंट, यू हैव मेड मोर पेमेंट देन व्हाट यू हैव रिसीव्ड. आपके बैंक में 1 लाख ही थे बट यू मेड 1,20,000 पेमेंट, यू मेड 1,30,000 पेमेंट. दैट इज पॉसिबल बिकॉज ये करंट अकाउंट होता है, राइट? और दैट इज कॉल्ड एज 20 that 20 or 30,000 will be called as overdraft. Is overdraft OD, बराबर ना? Petty cash book is used for recording dash dash expenses. Petty cash book is used for recording dash dash expenses. Petty expenses. Should be क्या लिया? पेटी होना चाहिए ना, चेक करो एक बार, पेटी होना चाहिए. रूटीन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, नहीं तो अगर लिखना है रूटीन पेटी एक्सपेंसेस. आई कैन शो यू मैं कैसे मेंटेन करता हूँ पेटी ना. देखो मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, ये मेरा रहेगा. लेट मी शो, मैं मेरे लिए मेंटेन करता हूँ.
ये मेरे रहे थे, लाइक एग्जांपल अप्रैल 19 के थे, सो दीज वर द एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मेरी डेट्स है, दीज आर माई पर्टिकुलर्स, ठीक है। दिस इज अकाउंट हेड। मंथ के एंड में मैंने पिवोट टेबल डाल के ये जो मेरे टोटल कितने 6650, ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस है पूरे मंथ के, समझा। तो ये मेरे मंथ है, सपोज अप्रैल 19 दिख रहा है, ये मैंने रीजंस लिखा है किस लिए वो एक्सपेंस है, पर्टिकुलर्स। ये मेरा अकाउंट हेड है, लाइक मैंने बोला पेड टू प्रवीण स्टोर्स फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में गया। पेड फॉर अमेजोन फॉर परचेस ऑफ बोर्ड क्लीनिंग लिक्विड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाला मैंने। पेड सैलरी टू काका, वो काका के अकाउंट में, बिकॉज मैंने लीजर वैसे मेंटेन किया, ठीक है। देन पेड फॉर परचेस ऑफ वाटर बॉटल्स, राइट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिफंड ऑफ फीस, किसी ने 20 रुपीज एक्स्ट्रा चेक दिया होगा तो वो 20 रुपीज रिटर्न किए होंगे, सिस्टम में लेता नहीं 1 रुपए भी एक्स्ट्रा। ऑटो फेयर है तो ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में गया, लाइक दैट, एडवांस वगैरह। अब देखो फिर ये पूरे आपके उस मंथ के एक्सपेंस आ गए 6665, तो मैंने फिर इसको पिवट डाल के मैंने बोला एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आर 230, फीस रिफंड इज 10, काका को 3500, प्रिंटिंग स्टेशनरी 2510, रिपेयर्स 50, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 345, स्टाफ फैसिलिटीज 20, ये मेरे पूरे 665, ये एनालिसिस आ गया। इसको आप बोलते हो एनालिटिकल पेटी कैश फ्लो। मैंने आप क्या करते हो, यहाँ पे कॉलम डालते हो, राइट। एक्सेल में जरूरत नहीं, एक्सेल में डायरेक्टली निकलता है। लाइक दिस आई मेंटेन ऑन एवरी मंथ, ये मेरा रहता है। इट्स योर चॉइस, आपको कैसे रखना है। इस बार मैंने इतना नहीं मेंटेन किया, मैंने एकदम सिंपल रखा था क्योंकि इस बार टाइम ही नहीं था, तो इस बार मैंने ऐसे मेंटेन किया है डायरेक्टली। डेट्स डालते जा रहा हूँ, डेट्स डालते जा रहा हूँ, यू कैन सी ये सब चीजें आती है। मैंने यहाँ पे अकाउंट डेट डाला होगा, यू कैन सी डेट, टाइप ऑफ एक्सपेंस, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पेड बाय होम, एंड देन दिस इज वेदर आई हैव बिल और नॉट, ये मैंने मेरे रिमार्क लिखे हैं, ठीक है। ये जो जनरली मैंने एक्सपेंस किए दीज आर जीएसटी एक्सपेंसेस, क्योंकि इनके बिल होना मैंडेटरी है जीएसटी के लिए, और मुझे वो देना भी होता है जीएसटी रिटर्न में। तो इट्स योर चॉइस, आप कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, इट्स योर चॉइस, ट्राई टू ऑलवेज रिमेंबर। ऐसे नहीं कि इट्स स्किल एट द एंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, पेटी कैश बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस। इन परचेस बुक, purchases on dash dash are recorded, credit, purchases on credit are recorded। आगे नेक्स्ट, यस आगे देखो, परचेस बुक, कैश परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, एग्री और डिसएग्री, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट। कैश परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द, तो इसको क्या लिखेंगे, परचेस बुक को कैंसिल करके कैश बुक, बराबर ना, परचेस को कट करके कैश कर दो। कैश बुक रिकॉर्ड्स, बोलो कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कट कर दो। ऐसा कट करना बाद में समझेगा नहीं तो क्या कट किया वो ढूंढते बैठोगे, एक लाइन मार देना खाली, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस रिकॉर्ड्स all transactions in the subsidiary books, all transactions, small and large businesses record all transactions in the subsidiary books। actually small businesses never maintain subsidiary books, subsidiary books में इतने सारे books maintain करने तो you must have that much people, उतना maintenance भी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि small businesses maintain subsidiary books, large businesses maintain subsidiary books। मेरे हिसाब से this should be only large businesses maintain subsidiary books। देखो, try to understand, if you maintain more books you require more like internal control। internal control पता है क्या होता है, नहीं, अच्छा एग्जाम, आप मूवी में जाते हो विदाउट टिकट आप जा सकते हो क्या, कैसे नहीं जा सकते, क्या रीजन है नहीं जा सकते, हाँ तुम लोग थिएटर गए हो, तुम लोग किधर गए, थिएटर किधर गए, हाँ आएगा दिन, अच्छा उधर कैसे एंट्री क्यों नहीं कर सकती तू, तो क्यों नहीं जा सकती, कुछ तो रीजन रहेगा,
पे क्या जाने दे, ऐसे नहीं जा सकते क्या? अरे उनके पास एक स्पेसिफिक नंबर है जो वो गेट पे खड़े रहते हैं, वो पहले टिकट चेक करते हैं, हाफ कट कर देते हैं, आपको देते हैं तो भी एंट्री मिलती है। अंदर एक बंदा और रहता है उनका जो आपको सीट वगैरह दिखाता है, वो हाफ भी वो चेक करता है आपका, टिकट फट जाता है ना दो में। तो ये क्या है, दिस इज इंटरनल कंट्रोल कि मतलब ये चेकिंग है इनडायरेक्टली, इंटरनल कंट्रोल शुड बी इन प्लेस, मतलब नहीं तो कोई भी अंदर घुसेगा ना, नहीं तो कोई भी अंदर घुसेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो ये होते हैं इंटरनल कंट्रोल। सो जितना बड़े बिजनेस रहेगा ना उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होनी चाहिए। अब इंटरनल कंट्रोल एग्जांपल मैं बोलता हूं, अगर आप ये लेते हो हॉस्पिटल में, अभी आई वाज इन हॉस्पिटल सिंस लास्ट 10 डेज, तो मैंने देखा है तो क्या था कि अभी कोविड पेशेंट वगैरह है, मतलब अभी सब चीजें बंद नहीं हुई, तो दे डोंट अलाउ पेशेंट्स टू लाइक, मतलब दे डोंट अलाउ विजिटर्स दैट फ्रिक्वेंटली। तो वो क्या करते हैं, एक ही बंदा रहेगा, एक ही बंदा रहेगा, उसको पास दिए थे। तो जब पास देते थे तो जिसके पास पास है वही पेशेंट के रूम में जाएगा, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। बट स्टिल देयर वाज वन लूप होल व्हिच आई फाउंड आउट, बेसमेंट से डायरेक्टली ऊपर जाने का ऑप्शन है। अगर आप 4 व्हीलर पार्क करते हो, क्योंकि मैंने उस दिन 4 व्हीलर पार्क की और मैंने ऐसे ही पूछा कि मुझे ऊपर जाना है, तो उन्होंने बोला बेसमेंट से, नो वन चेक मी। तो आगे से मुझे पता चला इवन आई डोंट हैव पास आई कैन स्टिल एंटर इन हॉस्पिटल थ्रू द बेसमेंट, और बेसमेंट से डायरेक्टली लिफ्ट लेके ऊपर वाले फ्लोर पे, कोई चेक करने को नहीं था। तो आगे से आई नेवर यूज द पास, मैं पास दीदी या मेरे पापा को देता था कि आप सामने से आते जाते जाओ, मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा। सो ये मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो लोग ऐसे एंटर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था, कोई तो रिलेटिव मिलने आए, तो मैंने क्या किया कि मेरे बाजू वाले रूम से ही उनका पास ले लिया, नीचे जाके उनको पास दिया, बोले आप एंटर करो। उन्होंने पूछा भी नहीं, खाली पास देगा। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, समझा नहीं समझा? और आते टाइम मैं फीडबैक लिख के आ गया कि आप डायरेक्टली बेसमेंट से एंटर कर सकते हो, प्लीज अवॉइड दैट। मेरा काम होने के बाद, एंड प्लीज चेक द पास, समवन कैन गिव पास टू राइट एनीवन। तो मैं लिख के आ गया, तो उन्होंने मुझे देखा, बोले, मैंने बोला मैं पूरे हफ्ते किया हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा, मेरा काम हो गया। बट ये बाकी पेशेंट के मतलब इससे दिस इज नॉट गुड ना, तो मैं लिख के आ गया वहां पे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लूप इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ना, वहां पे ज्यादा इंटरनल कंट्रोल चाहिए, एंड देयरफॉर दे मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, राइट? सब्सिडी बुक्स इन डिटेल मेंटेन करेंगे। बट जो छोटे बिजनेस है, जो किराना वाला है, जो स्मॉल ट्रेडर है, वो इतना क्यों मेंटेन करते बैठेगा? क्योंकि उसके पास उतना रिसोर्सेज भी नहीं है, ह्यूमन पावर भी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो क्या करेंगे, राइट? वो करेंगे कि एक ही जगह पे सब रिकॉर्ड करेंगे, जो होगा जर्नल। अगर कोई आपके पास कैश बुक नहीं, परचेज बुक नहीं, सेल्स बुक नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या? जर्नल, जो हमने फर्स्ट 2 चैप्टर में सीखा। हम सब कुछ कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे? जर्नल। या दूसरा ऑप्शन क्या है, अलग अलग सबसे बुक्स में रिकॉर्ड करो, आंसर वही मिलता है, आंसर कुछ अलग नहीं, लेकिन लिखने की स्टाइल चेंज होती है बस। आगे, सो ओनली लार्ज बिजनेसेस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडी बुक्स। द पर्सन हु मेंटेन्स पेटी कैश बुक इज कॉल्ड एज चीफ कैशियर, दिस इज रॉन्ग, पेटी कैशियर। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या लिखा ध्यान देना। कैश परचेसेस ₹1,60,000 at 10% TD, 5% CD. What is the net purchase? ले लो कैलकुलेटर पे, या आप ओरली भी निकाल सकते हो। देखो 1,60,000 माइनस 10%, 10% कितना रहेगा? 16,000, बराबर ना? सो कितना बचेगा मैडम? 1,44,000। हाँ, 5% CD, इसका 5% CD, 10% कितना रहेगा? 14,400। लास्ट डिसाइड करने का, उसका हाफ चाहिए, 40,000 का हाफ 7,400 का 200, 7,200, बराबर। 800 बचे, 1 कैरिड, आई थिंक 130, तो माइनस करके कितना आएगा? 8 गया ना, 6 इज 136,800 मेरे हिसाब से, 136,800। द नेट परचेस इज 136,800। द अमाउंट ऑफ द नेट परचेसेस लिखा है उन्होंने, नेट मतलब सब माइनस होने के बाद। एक्चुअली परचेस अकाउंट में कितना आएगा? 1,44,000। परचेस अकाउंट में कितना आएगा? 1,44,000। बट उन्होंने बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द नेट परचेसेस, मतलब जो आपने पेमेंट किया होगा सब होने के बाद, जो आपने नेट पेमेंट किया होगा 1,36,800। इसकी एंट्री क्या आएगी रे?
हाँ बोलो एंट्री, क्या एंट्री आएगी, बोल सकते हो एंट्री। कैश परचेस इज 1,60,000 at 10% TD and 5% CD. What is the net, what is the entry, एंट्री क्या आएगी? अच्छा परचेस अकाउंट डेबिट बोलो मैडम कितना, परचेस अकाउंट डेबिट हाउ मच, कितना आएगा परचेस अकाउंट में? 1,60,000, 1,44,000 और 1,36,800। 1,60,000 नहीं, 1,60,000 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, कितना आएगा? हाँ परचेस अकाउंट डेबिट 1,44,000, परचेस अकाउंट डेबिट 1,44,000। अच्छा उसके बाद यस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 7,200। अरे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो वैल्यू आती है ना वो परचेस से सेल होती है। परचेस अकाउंट में और सेल अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ये वाली वैल्यू परचेस से सेल रहेगी। मेरे लिए परचेस तो सामने वाले के लिए सेल, ठीक है। टू कैश कितना? 1,36,800, ठीक है। परचेस एंड सेल्स में कौन सी वैल्यू आती है? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, बराबर। नेक्स्ट परचेस गुड्स फ्रॉम हरीश रुपीज 12,000 at 7% TD, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? 7%, 1% 120 रहेगा, 1% 120 रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट ऐड करो, 1% रहता है, यस 840। तो परचेस अकाउंट में कितना आएगा? 12,000 आएगा या 12,000 माइनस 840 आएगा? हाँ minus 80, that is 12,000 minus 840, it will be I think 11,160, perfect। अरे कैश परचेसेस है, हाँ एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? हम कैश पेमेंट कर रहे हैं ना मैडम, या नहीं नहीं ऊपर वाला देखो, कैश परचेज 1,60,000, व्हाट इज द नेट परचेज, तो हम पेमेंट करेंगे ना मैडम। हाँ ये क्रेडिट पे होना चाहिए, डेबिट कैसे बोल रहे हैं आप लोगों ने? मैंने भी नहीं देखा। टू डिस्काउंट रिसीव, अरे मानसी ये हाँ पेमेंट किया ना, आगे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट भी होना चाहिए ना। श्रुति का ध्यान नहीं क्या तेरा? सोल्ड 50 शर्ट्स एट 300 पर शर्ट, सोल्ड 50 शर्ट्स at rupees 300 per shirt and 40 trousers at 60 each. So we are dealer in shirts, we are dealer in like dress materials, right? So ध्यान देना 50 shirts at 300 मतलब कितना हो गया? 15,000, अच्छा। and 40 trousers at 400 600 each, अच्छा 24,000, तो टोटल कितने का हो गया? 39,000। ओके व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स? 39,000, बराबर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स? अरे सॉरी 39,000, बराबर ना, कितना का? 39,000। आगे सोल्ड 30 जैकेट्स एट 500 पर जैकेट, 30 मल्टीप्लाई बाय 500, 15,000 मैडम, बराबर ना। एट 8% TD, 1% ढूंढना है तो लास्ट के 2 डिजिट ऐड करो, 150 मल्टीप्लाई बाय 8 12, 120 पे और 0 आएगा, मैडम कितना? 1,200। दे आस्क यू व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, 1,200। हमने क्वेश्चन नंबर 9 पहले ही किया था, क्वेश्चन नंबर 9 हमने पहले किया, ठीक है। अच्छा बाकी के क्वेश्चन हमने किए थे। गिव मी 1 मिनट, एक सेकंड, मैं रतन को बोलता हूँ।
एक सेकंड, ये रहने दो, मैंने पहले ही निकाल के रखे थे, बहुत पहले ही, तो ये प्रैक्टिस के लिए रहेंगे. आई विल गिव होमवर्क फ्रॉम दिस बुक. एक्चुअली ओल्ड सिलेबस के, बट क्वेश्चंस आर सेम. सिलेबस ओल्ड है बट क्वेश्चंस आर सेम. ये मैं प्रैक्टिस के लिए जनरली क्लास में यूज करता था. इसमें देयर आर मेनी मल्टीपल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए यूज हो सकते हैं. आई विल ऑल्सो शेयर पीडीएफ, जिन जो बाहर से कर रहे हैं उनको ये. एक सेकंड, लेट मी चेक. ये वाला है क्या, देखो पेज नंबर 102 वगैरह. इसमें से मैंने कोई होमवर्क भी दिए थे, है क्या? नहीं है. एक सेकंड, नेम ऑफ द चैप्टर इज जर्नल. अच्छा, जर्नल इनिशियल में रहेगा, वो पेज नंबर उधर चेंज नहीं किया है. हाँ शायद से नहीं. एक सेकंड, मैं बोलता हूँ, आई बात समझ में उसने क्या किया होगा. एक सेकंड, मिल जाएंगे. 15 पे रहेगा. एक सेकंड, लेट मी चेक, क्योंकि क्या होता है, ठीक है. ये जहां पे फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है ना, उसके एमसीक्यूज देखो, उधर लिख लेना, आपके पास ही रहने दो. ठीक है, एमसीक्यूज चलो. आई विल ऑल्सो राइट आंसर हियर. ठीक है, मतलब आपको समझेगा. हाँ, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, बोलो मैडम. ओके, कैपिटल, परफेक्ट. जो ऑनलाइन कर रहे हैं ध्यान देना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. उसके बाद डीलिंग्स बिटवीन द टू पर्संस, ट्रांजैक्शंस, परफेक्ट. अभी स्पीड में होना चाहिए. ट्रांजैक्शंस, गुड. हाँ, लाइक प्रॉपर्टी, राइट. आगे ले देखते हैं. हाँ, यस, आगे. प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, एसेट्स, परफेक्ट. लिखते जाओ उस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, आगे नेक्स्ट. A person whose assets are sufficient enough to meet the business obligations. Obligations मतलब liabilities ना. Obligations मतलब क्या? Liabilities. You are obligated to pay मतलब it's your liability. Liability is a financial obligation. हाँ. The person who can meet his liabilities is solvent. Solvent. A person to whom amount is payable. The person to whom amount is payable, creditor.
business transactions in which cash is not paid or received immediately. Credit transaction, perfect. An allowance given by receiver of cash to the giver of cash at the time of payment. Discount allowed, or it should be cash discount allowed. Cash discount allowed ना, कैश डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इतना क्लियर लिखा है ना, सो कैश डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, आगे नेक्स्ट ध्यान देना. आगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम. एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम इज लॉस. बराबर ना. लाइबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी. कंटीजेंसी मतलब क्या? लाइक एग्जांपल, मैच चल रही है इंडिया श्रीलंका, इंडिया एंड इंग्लैंड. पिच कैसे बिहेव करेगी पता नहीं, सो इट इज कंटीजेंट. वी कांट से एनीथिंग, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. जो चीजें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, उसको कंटीजेंट थिंग बोले जाता है. समझ में आ रहा है? हु विल विन द टॉस, इट इज अ कंटीजेंट. प्रोबेबिलिटी 50% 50%, बराबर ना. टॉसिंग कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 50% 50%. Are you getting my point? So before toss, जो जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ है, नो वन कैन टेल. ऐसे चीजों को कंटीजेंट बोला जाता है. सो यहाँ पे क्या लिखा है? लाइबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. राइट, नहीं बोल सकते होगा या नहीं होगा, तो ऐसे चीजों को बोला जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी. लाइक एग्जांपल, किसी ने हमारे अगेंस्ट केस डाली है, किसी ने हमारे अगेंस्ट केस डाली है, किसी एम्प्लॉय ने हमारे अगेंस्ट केस डाली है. अब इसका आउटकम हमारे फेवर में होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो. अगर हमारे फेवर में होगा तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ द वर्डिक्ट इज नॉट इन आवर फेवर, हमें कंपेंसेशन पे करना होगा. सो कंपेंसेशन पे करना है नहीं करना है डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द केस विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. ये जज के कंट्रोल में या कोर्ट लॉ के कंट्रोल में, हम नहीं कुछ कर सकते. सो वो पे करना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा इज अनसर्टेन एंड इट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल. तो ऐसी लाइबिलिटी को हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है. क्या बोला जाता है? कंटीजेंट लाइबिलिटीज. क्या बोला जाता है? कंटीजेंट लाइबिलिटी. वारंटी क्लेम्स पता है आपको? वारंटी, वारंटी का कंसेप्ट है. हाँ बोलो मैडम. श्रुति का वारंटी क्या होती है पता है? वारंटी क्या होती है? बोल. एश्योरेंस होता है. गुड. हाँ, क्या? लेकिन होता क्या है वारंटी में? अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या करती है? रिटर्न या रिपेयर? हाँ, एग्जाम्पल, अगर आपके पास मोबाइल है और कुछ खराब होता है विद इन 1 ईयर, जनरली 1 ईयर 2 ईयर्स की वारंटी होती है. यू कैन एक्सटेंड द वारंटी एज वेल. राइट, एक्सटेंड वारंटी बोलते हैं उसको. तो आप क्या करोगे उस टाइम में? जो भी रिपेयर्स रहेगा, जो भी रहेगा, दे विल मेक फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, वो जनरली मटेरियल के चार्जेस लगाते हैं, लेबर के चार्जेस नहीं लगाते. बराबर ना. तो होता क्या है, अब एग्जांपल मैंने सेल किया है, अभी कस्टमर मेरे पास आएगा नहीं आएगा, इट इज कंटीजेंट ना. हर कोई कस्टमर रिपेयर्स के लिए आएगा ऐसे नहीं. मे बी मुझे खर्चा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आई डोंट नो. इफ आई एम ए सेलर और मैंने 1 साल की वारंटी दी है, तो मुझे ये पता है कि 1 साल के भीतर अगर मैंने 10 लाख का सेल किया है, उसमें से कम 2 लाख सेल वाले तो रिटर्न आ जाएंगे कि कुछ तो मुझे रिपेयर करना होगा. एंड वो रिपेयर तो मुझे मेरे कॉस्ट में करना होगा ना. तो उसके लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं. आई नीड टू incur some expenses. तो those expenses which is not in my control, मेरे कंट्रोल में नहीं, कस्टमर आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, इज ए कंटीजेंट. ऐसे लाइक मैंने बोला कि वर्डिक्ट ऑफ द केस, लाइक वारंटी क्लेम्स. राइट, मैं गारंटी नहीं बोल सकता कि कस्टमर आएगा ही आएगा. इट इज नॉट इन माई कंट्रोल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोई आएगा तो मे बी उसकी वारंटी क्लेम एक्सेप्ट होगा नहीं होगा. सपोज उसने खुद होके फेंक दिया होगा, कुछ ऐसे होगा. वारंटी के क्लॉज होते हैं, आपने देखा भी होगा, बोलते गिरा होगा तो हम नहीं करेंगे, पानी का नहीं करेंगे वगैरह. तो वो क्लॉजेस में भी बैठना चाहिए ना. आर यू गेटिंग? मतलब कितने लोग आएंगे रिपेयर के लिए, उसमें से हम कितने लोगों का करेंगे, वो भी मैटर करता है. तो दैट इज अनसर्टेन. जब ऐसी लाइबिलिटी होती है ना अनसर्टेन, उसको बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी. उसको कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं? कंटीजेंट लाइबिलिटी. तो वारंटी क्लेम्स आ गया,
ये आ गया आपका कौन सा मैंने बोला कि केस के केस में होता है जनरली, ठीक है। कितने सारे केसेस चलते हैं पता होगा आप लोगों को। एग्जांपल, सैमसंग वालों ने एप्पल वालों का राइट पेटेंट कॉपी किया है, तो एप्पल वालों ने केस डाली और केस का एक दिन में खत्म होती है। इट कीप्स ऑन लाइक इन कोर्ट सिंस years आफ्टर years, राइट। तो अब सैमसंग वाले क्या बोलेंगे, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी अराइज होगी नहीं होगी पता नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा पता नहीं, सो दे विल डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज करेंगे राइट कि लाइबिलिटी बन भी सकती नहीं भी बन, वो बोलेंगे देयर इज अ कोर्ट केस पेंडिंग इन अ कोर्ट, केस पेंडिंग इन द कोर्ट, द लाइबिलिटी इज नॉट सर्टेन। सो ऐसे लाइबिलिटी को कौन सी लाइबिलिटी बोला जाता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, expenditure on fixed assets which increases the earning capacity of the business. There are two types of expenses. एक रूटीन एक्सपेंस, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंसेस सैलरी, परचेसेस, रेंट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंसेस को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। एंड असेट्स को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिख लेना कहां पे तो लिख लेना, there are two types of expenses, ठीक है। there are two types of expenses लिख लेना, ठीक है। two types of expenses, मैं यहां पे भी लिखता हूं आपके इसमें, two types of expenses। there are two types of expenses। first, ठीक है, कौन से दो टाइप्स के एक्सपेंसेस है, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस एंड दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, परचेसेस ऑफ गुड्स, समझ में आ रहा है, ऑक्ट्राई, कैरेज, जो एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं ना वो सब। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स, फिक्स असेट परचेस, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इसकी एंट्री आती है मशीनरी टू कैश, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी टू कैश। समझ में, कोई फिक्स असेट परचेस करते हैं जो एक्सपेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, फिक्स असेट होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट्स बनते हैं एंड असेट्स इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, because of plant and machinery you produce goods and services and you sell it, so it increases your earning capacity. They creates earning capacity, creates or increases, huh? Huh? obviously like example, there is a theater and उस theater में आप बालकनी डाल देते हो, so that construction cost of the balcony will increase your earning capacity. Now you can you can make more people sit, you can increase the number of audience, समझ में आ रहा है, तो that is increase your earning capacity ना। Are you getting my point? बट आपने बाहर सिक्योरिटी वाला रखा है, उससे कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बनेगी, वो नॉर्मल वाला है, उसकी सैलरी एंड एक्सपेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा एग्जांपल, सपोज आपका ऑफिस है, आपने उसको रिनोवेट किया एंड नाउ पहले 30 लोग बैठते थे, अब 40 लोग बैठ रहे हैं, इट हैज इंक्रीज योर कैपेसिटी, सो दैट रिनोवेशन इज नॉट एक्सपेंस, इट इज असेट। समझ में आ रहा है? सो एनीथिंग लाइक एग्जांपल, आप बाइक को आपके बाइक में साइड कार लगाते हो, तो दैट इज एन एक्सपेंस। आपने बाइक परचेस की और बाद में आपने साइड कार लगाई, साइड कार पता है ना आपको, वो तीसरा लोग बैठता है, देख मुन्ना बाइक का नहीं देखा क्या पोस्टर कभी तूने? हाँ राइट, वो साइड कार वाला, राइट। तो उसमें बाइक पे नॉर्मली 2 लोग बैठ सकते हैं, साइड कार से तीसरा भी बैठने लगा, तो कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। सो सच एक्सपेंसेस व्हिच इंक्रीज द कैपेसिटी आर असेट्स। समझ में आ रहा है? सो दे क्रिएट्स और इंक्रीजेस कैपेसिटी, and revenue expenses maintains the capacity. They do not create,
दे डू नॉट इंक्रीज, जो है उसको वो क्या करते हैं, मेंटेन। मेंटेन कैपेसिटी, समझ में आ रहा है? लाइक एग्जांपल, आप बाइक को हमेशा सर्विसिंग करते हो, क्यों करते हो? टू मेंटेन इट ना। तो सर्विसिंग एक्सपेंसेस इज एक्सपेंस, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। बट आप बाइक परचेस करते हो, इट क्रिएट्स न्यू एसेट, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू कैपेसिटी और एसेट। अगर जो नई एसेट बनाएगा ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एंड अगर आप दोनों में समझते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन द नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब हमेशा नहीं होते, दे आर नॉन रिकरिंग। कभी कभार करते हो आप, डेली बेसिस पे नहीं करते। नॉन रिकरिंग, इट इज नॉट रूटीन इन नेचर। आप डेली फिक्स एसेट नहीं परचेस करते मैडम, यू परचेस वंस ए वाइल, बट you daily incur expenses. So revenue expenses are recurring in the nature. Every month आप सैलरी पे करोगे, डेली आप वेजेस पे करोगे, एवरी मंथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, टेलीफोन बिल पे करोगे, दैट कम्स रेगुलरली। समझ में आ रहा है? सो रिकरिंग इन नेचर। परचेस आप डेली बेसिस पे परचेस करोगे, इट इज अ रेवेन्यू। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू। कहां पे तो लिख लेना, जब भी रेवेन्यू आइटम बोला जाता है ना, रेवेन्यू आइटम अकाउंट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लेना, ऐसे लिखो रेवेन्यू, ऐसे लिखो रेवेन्यू। एक वर्ड है रेवेन्यू, दूसरा वर्ड है कैपिटल। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली। रेवेन्यू if you use with the expenditure, one may use revenue with the receipts। revenue expenditure मतलब expense accounts, expenses account, ठीक है? all expenses account are revenue items or revenue expenditure items। revenue receipts are income accounts, ठीक है मैडम? देन सिमिलरली कैपिटल रिसीट भी हो सकती है, कैपिटल मतलब कैपिटल के पेमेंट भी हो सकता है, रिसीट भी हो सकती है, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर असेट अकाउंट्स एंड कैपिटल रिसीट्स आर लायबिलिटीज। लायबिलिटी अकाउंट्स are liability accounts, and this is commonly known। try to understand, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंस बात करते हो ना, दे आर रेवेन्यू आइटम्स। दे आर विच आइटम्स? रेवेन्यू। डोंट टेक लिटरल सेंस, रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू आइटम्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस, एंड कैपिटल आइटम्स आर रिलेटेड टू assets and liabilities। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज किस में आते हैं? बैलेंस शीट में ना। तो बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स आते हैं? कैपिटल आइटम्स। बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स आते हैं? कैपिटल आइटम्स, ठीक है? बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट इज अ डिफरेंट एंड कैपिटल आइटम्स आर डिफरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस किस में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, टू फाइंड आउट प्रॉफिट। ठीक है, आगे ठीक है। सो आगे से याद रखना, रेवेन्यू आइटम्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस, कैपिटल आइटम्स मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड जनरली असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर लॉन्ग टर्म। जनरली फिक्स्ड असेट्स आर मोर देन 1 year, करंट असेट्स आर लेस देन 1 year। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मोर देन 1 year, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज लेस देन 1 year। लेस देन 1 year मतलब करंट, समझ में आ रहा है? आगे। एंड नॉन करंट मतलब मोर देन 1 year। आगे यस, यहां पे देखो, एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड असेट
विच इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी, मतलब वो कौन सा आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बोला कौन सा आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे उसके बाद देखो, हाँ चलो, उसके बाद सिस्टम इन विच एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नहीं, डबल एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट होता है, कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो होती है एक्रूअल सिस्टम, एक्रूअल और मर्केंटाइल, एक्रूअल और मर्क। एक होती है कैश सिस्टम एंड दूसरी होती है एक्रूअल सिस्टम, लिख लेना, कैश, एक्रूअल और मर्केंटाइल। मर्केंटाइल जो आप भी तक हम सीखते आए ना, वो कैश और मर्केंटाइल है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऊपर देखो आपके नोट्स में, यहाँ पे अभी अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखा होगा, देखो, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऊपर ही उसमें ही पेज, एक दो पेज पे ऊपर रहेगा, उसी इसमें, उसी चैप्टर में। एक होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है लाइक एक्रूअल और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम में इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट बेसिस and expenses are recorded on payment method, मतलब when we receive the money then only we will record। मतलब मैंने क्रेडिट पे सेल किया, I won't record। जब सपोज मैंने पराग को आज सेल किया ऑन क्रेडिट एंड आई एम फॉलोइंग कैश सिस्टम, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बट जब ये मुझे पे करेगा तब मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा। सपोज यू पे मी आफ्टर 1 month, तब मैं वो सेल रिकॉर्ड करूंगा। मतलब जब सेल हो रहा है तब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जब पैसे आ रहे तब। सपोज मैंने राइट इसे सेल किया, ठीक है, अगर मैंने इसको सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, या मैंने इससे परचेस किया, सपोज क्रेडिट पे परचेस किया, मैं आई वोंट रिकॉर्ड परचेस टुडे, जब मैं तुझे 1 मंथ के बाद पे करूंगा तब मैं परचेस रिकॉर्ड करूंगा। सो यू डोंट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, दैट इज कैश सिस्टम, दैट इज नॉट द करेक्ट सिस्टम, दैट इज नॉट द करेक्ट सिस्टम, हमेशा याद रखना, विच इज मोर एक्यूरेट। अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने क्रेडिट पे परचेस किया तो भी रिकॉर्ड होता है, और बाद में पेमेंट की एंट्री भी रिकॉर्ड होती है। जब हमने क्रेडिट पे सेल किया तो भी रिकॉर्ड होगा, एंड जब पैसे आएंगे तभी भी रिकॉर्ड होगा। सो वी रिकॉर्ड कैश एज वेल एज क्रेडिट, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज वी सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। सो उसमें क्या देखो, कैश में क्या लिखा, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट बेसिस, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट बेसिस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल और मर्केंटाइल में क्या लिखा है, देखो, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन earned basis, incomes are recorded on what basis, earned, and expenses are recorded on accrued basis। earned मतलब एग्जांपल, मैंने तुझे सेल किया ना, I have earned the income, खाली मुझे रिसीव करना बाकी है। If I sold goods on credit, it's my right to receive money from you, I have earned it, तू मुझे बाद में देगा। मैंने तेरे से गुड्स परचेस किए, I have incurred the expense, मैंने परचेस किए तभी incurred किए, मुझे खाली पे करना बाकी। समझ में आ रहा है? So incomes are recorded on earned basis and expenses are recorded on incurred basis, not on जब मैं तू मुझे देगा और जब मैं तुझे पे करूंगा तब रिकॉर्ड नहीं होते, तभी तो होंगे ऑब्वियसली। सो एक्रूअल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। सो अगर कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है कैश सिस्टम, जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल सिस्टम में यू रिकॉर्ड बोथ द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट। ठीक है, समझा? आगे से कभी मत भूलना हम कौन से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एक्रूअल और मर्केंटाइल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आगे हम कौन से सिस्टम फॉलो करते हैं, एक्रूअल और मर्केंटाइल। नेक्स्ट, यस, हाँ बोलो, मिल गया आंसर? या एक्रूअल और मर्केंटाइल। आगे हाँ, वो मैंने चेक नहीं किया। Next, concept under which comparison of one accounting period with another period is possible. Actually, it is periodicity. Periodicity में क्या होता है, we divide the accounting life into years। हमारा बिजनेस 10 साल चलेगा तो हम एवरी ईयर क्या करेंगे, अकाउंट बनाते रहेंगे, एंड वी विल कंपेयर। periodicity, ठीक है, इसका इतना कुछ नहीं है। पीरियोडिसिटी
अरे हम क्या करते हैं कि 10 साल के एंड में प्रॉफिट नहीं ढूंढते, एवरी ईयर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो हमने 10 साल की लाइफ को तीन इक्वल हिस्सों में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। सो इकोनॉमिक लाइफ इज स्प्लिट इनटू इक्वल इंटरवल्स, जनरली इट इज ऑफ 12 months, राइट, इन इक्वल पीरियड्स, इट इज अ पीरियोडिसिटी। उससे क्या होता है, वी कैन कंपेयर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दूसरे ईयर से, दूसरे ईयर का रिजल्ट तीसरे ईयर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। आगे, मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज गुडविल, इट इज नोन एज गुडविल, राइट। आगे, surplus of income over expense, income is more than expense, profit, perfect. A commodity in which trader deals, yes, जिसमें आप बिजनेस करते हो, गुड्स होते हैं, राइट। हेवी एक्सपेंडिचर, हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डेफर्ड, बट वो कंसेप्ट बंद हुआ फॉर योर इंफॉर्मेशन। नहीं, हाँ, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो, टुडे इट इज रेवेन्यू, बट आपके इसमें डेफर्ड रेवेन्यू लिखना है। हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आपका आंसर डेफर्ड रेवेन्यू है, बट डेफर्ड रेवेन्यू कंसेप्ट वाज एप्लीकेबल फॉर एयर इंडिया। एयर इंडिया के केस में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अलाउ किया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, बट वो बंद हो चुका है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। होता क्या है, इफ यू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर, आपने बहुत हेवी एडवर्टाइजमेंट किया तो उसकी वजह से लॉस दिखेगा, बट एक्चुअली उसका बेनिफिट एक साल में नहीं मिलने वाला एडवर्टाइजमेंट का, आने वाले 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब ऐसे होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो डेफर्ड हो रहा है, डेफर्ड मतलब पोस्टपोन हो रहा है, समझ में आ रहा है, उसके बेनिफिट पोस्टपोन हो रहे हैं, तो एक्सपेंस भी क्या करना होता है, पोस्टपोन करना होता है। तो ये कंसेप्ट आज बंद है, बट अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट दिस कंसेप्ट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेस ऑफ फिक्स असेट इज, अभी डिस्कस हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप फिक्स असेट परचेस करते हो तो उस एक्सपेंडिचर को कौन सा बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, सब कुछ डिस्क्लोज करना है, तो नाम देख के आपको पता चलेगा, द कंसेप्ट इज डिस्क्लोजर कंसेप्ट। डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलती है, जो कुछ सच है वो दिखाओ, हाइड मत करो, कुछ कंसील मत करो। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है। डिस्क्लोजर कंसेप्ट सेज व्हाटएवर इज डिस्क्लोज इन ऑनेस्टली, डिस्क्लोज इन फुल। समझ में आ रहा है? नहीं, मतलब कोई चीजें छुपानी नहीं चाहिए। The immediate recognition of the loss is supported by the principle, तुरंत जो लॉस है ना तुरंत दिखाओ। Immediate recognition of the loss, conservatism, be conservative। अगर आपको लगता है आपका लॉस होने वाला है तो डोंट पोस्टपोन इट, तुरंत रिकॉर्ड करो, बी कंजर्वेटिव। एंड एज अ इंडियन वी आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। जैसे हम बोलते कि हमें ट्रिप पे जाना है और आप बोलते हैं आपके पापा को 1000 रुपए चाहिए, आपके पापा आपको 1200 लेके रखते हैं, बोलते 200 रुपए अगर अर्जेंसी में। एवरीवन इज ए कंजर्वेटिव। दूसरा, अगर आपको लगता है आपको 90% आएंगे, यू टेल 85%, यू नेवर टेल 90 और 92%, यू ट्राई टू बी ऑन सेफर साइड। बी ऑन सेफर साइड, राइट, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। अकाउंटिंग में भी वैसे होता है, जब हमें लगता है कि प्रॉफिट होंगे, हुए या नहीं, हमें लगता है होंगे तो हम दिखाएंगे नहीं, जब होंगे तब देखा जाएगा, नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे आपको लगता है कि 90% आएंगे बट 92 आते तो अच्छी बात है ना, बट आप बोलते हो क्या, नहीं। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट होगा, जब होगा तब देखा जाएगा, बट अगर आपको लगता है लॉस होगा तो डोंट वेट, रिकॉर्ड इट। सो प्रोबेबल प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड, प्रोबेबल लॉसेस आर रिकॉर्डेड। ये कौन सी कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म। और दूसरा नाम है उसको प्रूडेंस, वहां पे डैश करके लिखना, और प्रूडेंस, बी प्रूडेंट, प्रूडेंट कंसेप्ट, बी प्रूडेंट। सब कभी इंग्लिश वालों ने सुना होगा प्रूडेंट कंसेप्ट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है मैडम, बी रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक। प्रूडेंट रहना मतलब क्या, बी रियलिस्टिक, जो है एक्सेप्ट करो, अगर लॉस होने वाला है एक्सेप्ट करो। सो बी प्रूडेंट, समझ में आ रहा है। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है, तो लिख लेना कहां पे, तो कंजर्वेटिज्म इज
कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रूडेंट कंसेप्ट ये क्या बात करती है? इग्नोर फ्यूचर गेन्स, इग्नोर प्रोबेबल गेन्स। सेकंड, however, provide for future losses, provide for probable losses। अगर आपको लगता है आप फेल होने वाले हो तो घर वालों को पहले ही बोल के रखो कि पेपर गंदे गए, तो बाय द टाइम ऑफ रिजल्ट उनको भी लगता है कि पेपर सच्चे में गंदे गए थे। अगर आप उनको बोल के रखते हो बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए, और बाद में फेल होते तो गालियां पड़ेगी आपको, तो आप क्या करके घर में माहौल बना के रखते हो कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। यस, मेंटली घर वालों को भी, खुद को भी और घर वालों को भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू आर बीइंग प्रूडेंट और यू आर बीइंग कंजर्वेटिव। हमारे रियल लाइफ से मैचिंग है ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज प्रोवाइड फॉर प्रोबेबल लॉसेस, प्रोवाइड फॉर प्रोबेबल लॉसेस। ठीक है, समझा? तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलती है? अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले, जब होंगे तब बोलो, आप पहले नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं, अगर पेपर अच्छे गए ना आपके पास रखो, पेपर अच्छे गए, जब तक रिजल्ट नहीं आता कुछ मत बोलो। पेपर गंदे तो बोलो, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। अगर आप बोलते हो पेपर बहुत अच्छे गए और फेल हो गए तो वो गलत दिखता है। सो बी प्रूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर अच्छे गए तो खुद के पास रखो, रिजल्ट विल ऑब्वियसली टेल यू कि पेपर अच्छे गए, खुद होके डिस्क्लोज मत करो। तो प्रोबेबल गेन होने वाला है तो इग्नोर करो, बट अगर प्रोबेबल लॉस होने वाला है तो पहले ही उसको डिस्कस करके रहो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इन फाइनल अकाउंट्स वी विल स्टडी, एग्जांपल लिख लेना, प्रोविजन फॉर आरडीडी, आरडीडी। इन फाइनल अकाउंट्स आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक। सो जो बाहर से अटेंड कर रहे हैं ना, अगर आप पुणे में आ सकते हो 2-3 दिन में, 4-5 दिन में, मंडे तक, तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स इज द बेस ऑफ योर राइट एंटायर 12th। सो फेस टू फेस इज गुड। मैंने इसलिए रखा था वो चैप्टर, और इन सीक्वेंस है, मतलब मुझे अलग से, मुझे खाली अब प्रॉफिट निकाला और बैलेंस शीट करनी है हमें। हम लेजर तक आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, उसकी आगे वाली स्टेप है फाइनल अकाउंट्स। सो प्रोविजन फॉर आरडीडी, प्रोविजन फॉर आरडीडी, ये कंसेप्ट रहेगी, तब मैं सिखाऊंगा कि हम कैसे लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं। और अनदर एग्जांपल, वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बोल के कंसेप्ट है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एग्जांपल, आपने, आपके डेटर्स है, कभी कभी ऐसे होता है कि आप किसी को पैसे देते हो और आपको लगता है वो रिटर्न नहीं करेगा, ऐसे होता है क्या? You give some, like you lend money to someone and आपको लगता है यार ये बंदा रिटर्न नहीं करेगा, इसे होता है, तो वो कंसेप्ट है आरडीडी। आपने सेल किया है क्रेडिट पे, डेटर्स है, बट आपको लगता है वो रिटर्न, वो पैसे नहीं देंगे। हर डेटर थोड़ी आपको पैसे देगा, इसे थोड़ी होता है। आपने धंधा, ऑब्वियसली उसमें बैड डेट्स भी हो सकता है ना, मतलब ये वो बंदा बोल रहा है मैं पे करूंगा लेकिन पे नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे एक तो डायरेक्टली बोल नहीं पे कर रहा है, वो भी चल जाएगा, वो बैड डेट्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो पैसे दे दे, वो लटका के रखा है, तो आप लगता है शायद से ये नहीं पे करेगा। ये जो कंसेप्ट है ना कि शायद से पैसा नहीं मिलेगा डेटर से, वो है आरडीडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। सपोज हमारे गोडाउन में स्टॉक है, हमारे गोडाउन में स्टॉक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और मार्केट प्राइस 1,20,000 है। इफ यू सेल दैट, स्टॉक है मतलब सेल हुआ है क्या? जो सेल हुआ वो स्टॉक थोड़ी रहेगा हमारा, हमारे गोडाउन में पड़ा है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, मैंने परचेस किया था उसको 1 लाख में। इफ आई सेल इट मार्केट
आई विल प्रोबेबली गेट 1,20,000, उसकी मार्केट प्राइस 1,20,000 है। तो इन फाइनल अकाउंट्स हम उसको 1 लाख पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower। कॉस्ट इज 1 लाख, मार्केट प्राइस इज 1,20,000, whichever is lower 1 लाख। वी डोंट शो दैट 20,000 प्रॉफिट, कि 20,000 का प्रॉफिट होगा ना, इफ यू सेल इट देन देयर विल बी प्रॉफिट, सो ये प्रोबेबल प्रॉफिट है। तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, डोंट शो प्रोबेबल प्रॉफिट, तो हम उसको कॉस्ट पे दिखाएंगे। वी वोंट, जब तक सेल नहीं होता तब तक प्रॉफिट बुक करेंगे क्या, नहीं। बट अगर ऐसे होता है, सब फ्लड आ गया एंड वो 1 लाख का स्टॉक, जो हमारा कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 लाख, मार्केट प्राइस कितनी थी 1,20,000, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम किस पे वैल्यू करेंगे 1 लाख पे। बट सपोज क्या हो गया, इट गॉट स्पॉइल्ड एंड अब उसकी प्राइस 60,000 हो गई। स्पॉइल होने पर मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, लॉजिकल है, मानती है। अब तू किस पे वैल्यू करेगी, 1 लाख और 60 whichever is lower, किस पे वैल्यू करेगी 60। मतलब तूने यहाँ पे कितने का लॉस दिखाया अपने आप, 40। पहला ऑप्शन था, ध्यान देना, इफ मार्केट प्राइस इज 1,20,000, तो स्टॉक 1 लाख पे ही दिखाती, यू डोंट शो 20,000 प्रॉफिट। बट जब उसकी मार्केट प्राइस 60 हो गई तो तुझे लग रहा है कितने का लॉस होगा 40। स्पॉइल्ड हो गया तो तुझे लगता है 60 में जाएगा, तो यू विल वैल्यू एट 60, तो 40,000 का लॉस बुक होता है। सो यू रिकॉर्ड प्रोबेबल लॉसेस, यू डोंट रिकॉर्ड प्रोबेबल गेन। इज द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ये दो एडजस्टमेंट होते हैं फाइनल अकाउंट्स में। कोई भी क्वेश्चन होता है फाइनल अकाउंट्स का, ये दो क्वेश्चन एडजस्टमेंट रहते हैं। तब मैं फिर से समझाऊंगा विद लॉजिक कि ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे, ठीक है, ओके। द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ द लॉस इज सपोर्टेड बाय, लॉस तुरंत रिकॉर्ड करो, अभी हमने डिस्कस किया, हाँ यही ना कंजर्वेटिज्म, हाँ सॉरी। इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय विच प्रिंसिपल, लॉस होने वाला है तो अब भी रिकॉर्ड करो, डोंट वेट, लॉस होने तक वेट नहीं करना है। बट अगर प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट होने तक वेट करना है, ठीक है। आगे, concept which provides a line between present and future is known as going concern. Line between present and future is known as going concern, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, गोइंग कंसर्न है, कंसर्न इज बिजनेस एंड इट विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट। देन amount which is not recoverable from the customer is known as bad debts, ये सबको पता होना चाहिए। एंड आरडी मतलब जो अभी तक बैड डेट्स नहीं हुआ बट लग रहा है कि बैड डेट्स होगा। आरडी मतलब क्या, लगता है कि बैड डेट्स होगा, ऐसे हो भी सकता है वो पैसे लाके भी दे, गारंटी नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज काइंड ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। लाइक एग्जांपल ऐसे, आपको लगता है लड़की आपसे शादी करेगी और वो किसी से दूसरे से शादी करती है, तो वो बैड डेट्स हो गया। अब हो चांस है क्या फिर से तुम्हारे साथ शादी करने का, नहीं। या आपको लगता है किसी और से शादी करेगी, किसी और से शादी करेगी, जब उसकी शादी हो गई तो फाइनल हो गया ना। तो जब बैड डेट्स मतलब फाइनल, अब पैसे नहीं आएंगे बट लग रहा है कि नहीं आएंगे, वो जो सिचुएशन है ना वो आरडीडी की सिचुएशन है, समझा। आगे नेक्स्ट, टोटलिंग ऑफ द जर्नल और लेजर इज कॉल्ड एज, टोटलिंग को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, कास्टिंग। टोटलिंग को क्या बोलते हो, कास्टिंग, ठीक है मैडम। फोलियो मतलब पेज नंबर, फोलियो मतलब पेज नंबर, ठीक है। आगे, ट्रू और फॉल्स, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम, फॉल्स। देन यस बोलो, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, transaction is recorded, sorry, a transaction is concerned with money or money is worth, true, yes. आगे, cash discount is not recorded in the books, false. Solvent person is a person whose assets are more than his liabilities, true, good. Trading concern is established for rendering services to the
सोसाइटी। सर ट्रेडिंग कंसर्न सर्विसेज देती है क्या? एयरटेल सर्विस देती है। इज इट ट्रेडिंग? इट इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। योर स्कूल गिव सर्विसेज। इज इट ट्रेडिंग? ट्रेडिंग ट्रेड करते हैं, परचेस एंड सेल, परचेस सेल, परचेस सेल। एग्जाम्पल लाइक डिकेथलॉन। अच्छा एग्जाम्पल बाटा शोरूम, वो क्या करते हैं? परचेस सेल, परचेस सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो ट्रेडिंग वाले आ गए। या लैपटॉप शॉप विजय सेल्स, आपने टाइम देखा होगा तुम लोगों ने, इधर दिखा क्या? नहीं दिखा तुम्हें? नहीं, ठीक है। तो जो सर्विसेज देते हैं वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या आ गया? फॉल्स ना रे। ए डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। यस, ट्रू। Bookkeeping is an art as well as science. True. A bookkeeping and accountancy. In bookkeeping and accountancy, non-monetary transactions are recorded. False. Actually, which transaction record? Only monetary transaction. Conservatism means to follow safe side. अभी हमने डिस्कस किया। True. Perpetual succession. Perpetual succession मतलब क्या? नहीं पता? अच्छा, perpetual succession means it will continue. Like example, रिलायंस, धीरू भाई अंबानी चले गए फिर भी रिलायंस है, ये दोनों भाई भी चले जाएंगे तो भी रिलायंस रहेगा, बिकॉज इट इज ए कंपनी, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए बर्थ और डेथ ऑफ एनी पर्सन, इट विल कंटिन्यू, वो रहे या ना रहे वो चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको बोलते हैं is explained by the concept of concept of entity, going concern. Going concern क्या बोलता है? बिजनेस चलेगा ही चलेगा। कंसेप्ट ऑफ द एंटिटी, नहीं, सेपरेट एंटिटी इज एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? हाँ चलेगा, एक सेकंड। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी मतलब क्या? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, राइट? दिस एंड वही तो हम बोल रहे हैं, धीरूभाई अंबानी इज डिफरेंट एंड रिलायंस इज डिफरेंट। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? लॉ में अलग होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो नहीं है फिर भी कंपनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रतन टाटा इज डिफरेंट एंड टाटा कंपनी इज डिफरेंट इन द आईज ऑफ लॉ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट इज गिवन बाय सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या उसको उन्होंने बोला है कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। एंड बिजनेस विल कंटिन्यू वेदर देयर इज ओनर और नॉट, मतलब वो ओनर जिंदा या नहीं है, बिजनेस चलता रहेगा। सो दिस इज ट्रू। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इट विल कंटिन्यू, मतलब ये बिजनेस और उसके ओनर का कोई लेन देन नहीं। ठीक है, आगे। अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर। फॉल्स। इट इज यूजफुल फॉर बैंकर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, सबके लिए। दे आर स्टेक होल्डर्स। मैंने एक बार डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, दे आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स इन योर बिजनेस, इंटरेस्टेड पार्टीज। समझ में आ रहा है? आगे एक सेकेंड। हाँ तो मैं समझा ऐसे, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए। देखो मैं आपको बोलता हूं ना, 11th ऐसा ईयर है, अब इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स वाले। मतलब एक तो पहले 4 और फाइनल अकाउंट्स के 2 महीने बोला, एक मैंने बोला सिंगल एंट्री एंड दूसरा मैंने बोला फाइनल अकाउंट्स। ये चैप्टर आ गए ना, यू आर इनटू लाइक विनिंग पोजीशन। बाकी चैप्टर्स यू विल लर्न, हम सिखाएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लाइफ में फाइनल अकाउंट, जिस पे आप हमेशा काम करोगे। ठीक है, सो जो हम ऑब्वियसली स्टार्ट करने वाले। हाँ बोल ना। हाँ थेरी देख, तो मुझे भी थेरी पूछेगा, इवन आई डोंट नो। अब थेरी क्या होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, थेरी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द कांसेप्ट्स। थेरी में आगे पीछे हो सकता है, थेरी अगर तो एग्जैक्टली लिखने जाएगा तो हर टेक्स्ट बुक में अलग थेरी मिलेगी, ये भी समझ लेना। एवरीवन विल गिव यू डिफरेंट डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग। सो थेरी का इतना टेंशन मत लो, एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिकली गुड। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको
एंट्री आ गई तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और अब मुझे आने वाले लेक्चर्स में आई विल बी स्टार्टिंग सिंगल एंट्री एंड देन आई विल स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट्स। ये 2 चैप्टर्स में करूंगा। इट विल टेक मिनिमम 3 वीक्स तो पकड़ के चलो, 3 to 4 वीक्स। ये मेरे 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, 15 मार्च तक हमारा खत्म हो जाएगा एंड देन रिमेनिंग चैप्टर्स विल टेक, राइट, रिमेनिंग चैप्टर्स में से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आई विल गो, बिकॉज वो चैप्टर्स पर्सपेक्टिवली उतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं उनका, वो खाली 11th में। बट ये जो चैप्टर्स है, जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स सब्सिडरी बुक्स मैंने क्यों सिखाया, बिकॉज वो एक्सटेंशन था और ये चैप्टर्स आपको लाइफ लॉन्ग लगेंगे। अकॉर्डिंगली एज पर कॉलेज कन्वीनियंस में वो चैप्टर सिखाऊंगा। मैं लेने वाला हूँ, ऐसे नहीं कि मैं छोड़ने वाला हूँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना है। ये चैप्टर्स डेफिनेटली रहेंगे, ठीक है। आगे संडेज को भी लेक्चर रहेगा, वी विल बी टेकिंग लेक्चर्स ऑन संडे। कुछ नहीं होता, अभी पुणे में आप क्या करने वाले हो, इससे भी घर पे इतने दिन घर पे हो ना, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस में ले लूंगा, डोंट वरी। क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे सामने होगा ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब भी मैं आगे जा सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। मतलब मेरा सीक्वेंस ऑफ सिंगल एंट्री रहेगा, फाइनल अकाउंट्स आएगा, देन आई विल गो फॉर बिल्स ऑफ बीआरएस, फिर मैं रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन, इस सीक्वेंस में जाऊंगा। क्योंकि मुझे वो देखना है कि लॉन्ग टर्म क्या फायदा रहेगा, मुझे टाइम भी देना चाहिए ना, उसमें टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा। आगे कैश बुक पे थोड़ा होल्ड होना चाहिए, कैश बुक पे, कैश बुक भी लॉन्ग टर्म में लगेगा, कैश बुक। हम्म, ये किया ना हमने, एक सेकंड। आई डोंट नो फुली। इसमें रहेगा शायद से। हाँ मैडम, ये वाले लो, हाँ आपके सामने जनरल बोल के चैप्टर रहेगा, उसमें मिलेगा आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। मेरा पर्पस क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे आपको एटलीस्ट वो करना है कि आपको हर चीज समझे। धीरे, मैं बहुत धीरे जाता हूँ, मेरा जल्दी नहीं रहता, कोई टेंशन मत लेना। तुमने तो बोलोगे सर हम बहुत दिनों से वही चीजें कर रहे हैं, बट यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। अभी आगे क्या रहेगा, फाइनल अकाउंट्स आर ओनली क्वेश्चंस। तो सिंगल एंट्रीज क्वेश्चंस, उसमें थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलो मैडम जल्दी। यस, जर्नल, गुड। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, परफेक्ट।
कोई क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे, दैट हैज टू बी journalizing. Okay, then the brief explanation to the entry, narration. Perfect. The French word, yes, I think पहले 4 ही थे ना जी, या 3 ही थे, 4 थे पहले। हाँ, मुझे उस दिन याद आया कि एक फ्रेंच वर्ड है, एंट्री इन विच मोर देन 1 अकाउंट्स आर डेबिट और क्रेडिटेड, कंपाउंड, बट आपके इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्री है, उस दिन नहीं, कंबाइंड एंट्री आपके इसमें कंबाइंड है। मैंने आपको फाउंडेशन के इसमें दिखाया तो कंपाउंड है बोल के, कंबाइंड और कंपाउंड, राइट। देन कंबाइंड लिख लेना, एनीथिंग टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बोलो ड्राइंग्स, गुड। कमीशन पेएबल टू ब्रोकर व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, commission payable expenses. Then a journal entry in which only one account is debited or credited, simple entry ना, simple ना, हाँ, simple entry. The column in journal which is not filled at the time of journalizing, LF, जर्नल में LF उस दिन दिखाया ना मैंने करते हुए कि जब मैं पोस्टिंग कर रहा था तो लेजर का जो पेज नंबर था ना वो मैं वहां पे लिख रहा था, वैसे होता है। आगे, एन अकाउंट दैट इज डेबिटेड व्हेन द प्रोप्राइटर हाउस रेंट इज पेड, ड्राइंग्स एंट्री आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या है वो, ये है ना प्रोप्राइटर्स रेंट है ना, ड्राइंग्स। आगे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मुझे क्या लगता है आप लोगों के एग्जाम्स मई में रहेंगे ऐसे मुझे लग रहा है, उसका रीजन है अप्रैल में 12th के एग्जाम्स रहेंगे, एंड आपके एग्जाम तब तक नहीं होते जब तक 12th को खाली नहीं करते। मेरे अप्रैल में रहेंगे, दे विल, अभी जो टाइम टेबल प्रोबेबल टाइम टेबल आए ना अकॉर्डिंग टू दैट 9th 5th या 6th मई को पेपर खत्म हो जाएंगे। और अभी तक का पुणे में ऐसा ट्रेंड है कि पेपर्स 12th के बाद ही होते हैं, तो मेरे हिसाब से मई में पेपर होंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे किसी भी हालत में मार्च में पेपर होंगे ये नहीं लग रहा है, अप्रैल में तो चांस भी नहीं, बिकॉज अप्रैल में 12th के पेपर्स हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज बोर्ड्स, तो आपके पेपर मई में होंगे। सो उतना टेंशन मत लेके रखना, जब तक आपके पेपर नहीं होते हमारा टीचिंग रहेगा, सो मुझे वो टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग, बी सी ना, चलो टिक करो उसको। हाँ, आगे, जर्नलाइजिंग, द वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। आगे, द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू, अच्छा रेंट अकाउंट, सी ना। आगे, नेक्स्ट, द गुड्स और द अमाउंट or anything taken by proprietor for business for his personal use, debited to drawing and credit। अगर गुड्स लिए तो किसको क्रेडिट होगा रे, परचेसेस टू परचेस, कैश लिए तो किसको क्रेडिट होगा, टू कैश, कैश अकाउंट को, राइट। डेबिट होगा मतलब डेबिट का कौन सा अकाउंट रहेगा, क्रेडिट होगा मतलब कौन सा क्रेडिट, टू वाला कौन सा अकाउंट रहेगा। ए परचेस ऑफ द हॉर्स इन कैश शुड बी डेबिटेड टू लाइवस्टॉक। अगर आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके मतलब पुराने बुक में भी यही है, नई बुक में भी यही है, ठीक है। ए पेमेंट ऑफ ₹100 टू कोकाटेक कैरेज कंपनी फॉर ब्रिंगिंग मशीनरी टू द बिजनेस शुड बी डेबिटेड टू, नहीं, मशीनरी टू ब्रिंगिंग मशीनरी ना, मशीनरी लाने के लिए ना, परचेस करने के लिए तो मशीनरी अकाउंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, ए जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन द जर्नल, ट्रू, वाउचर कंपल्सरी है, विदाउट वाउचर यू कैन नॉट रिकॉर्ड इन जर्नल, ठीक है। आगे, नरेशन इज नॉट नेसेसरी, फॉल्स, वो तो मैंडेटरी यार, बराबर ना, वो मैंडेटरी है। आगे, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द जर्नल, ट्रू, ऑब्वियसली। लाइवस्टॉक इज नॉमिनल अकाउंट,
इज असेट अकाउंट, फॉल्स। इट इज अ रियल अकाउंट, अगर आपको ओल्ड इसमें देखना, इट इज रियल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स। इट इज पर्सनल और असेट। अगर आप मेरे टर्म्स में देखते हो, मैं असेट बोलता हूं, और तुम लोग जो कॉलेज में बोलते हो वो लोग बोलते हैं पर्सनल। ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ शेयर्स इज डेबिटेड टू ब्रोकरेज अकाउंट। इट इज, फिर क्या किसको डेबिट होगा? सेल ऑफ गुड्स इज, बराबर है मैडम, ब्रोकरेज, ट्रू है। गुड सेल करेगी मशीनरीज, देख गुड सेल होगी तो ब्रोकरेज अकाउंट रहेगा। यू विल पे द ब्रोकरेज ना, गुड्स है। इफ गुड्स आर सोल्ड द एंट्री शुड बी रिकॉर्ड इन द जर्नल, ट्रू ना? हाँ, गुड्स withdrawn by proprietor from the business is debited to drawings account. Goods withdrawn by proprietor from the business is debited to drawings account, true. Cash discount does not appear in the books, false. Actually cash discount ही books में आता है, cash book में नहीं आता क्या? दो columns. If rent is paid to landlord, landlord account should be debited, false. Rent to cash, rent paid to landlord, rent account debit to cash. Specify करा के cash रेंट पेड लिखा है ना, पेड है तो इट इज रेंट टू कैश ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ओनली, ट्रू। ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीजेस कैपिटल, फॉल्स। ड्राइंग्स डिक्रीजेस। अच्छा, प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर शुड बी डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। लाइफ पॉलिसी क्या रहेगा? पर्सनल। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग्स टू कैश। समझते हैं ना मैडम? नहीं तर विचार, ठीक है। आगे देखो, ये सब्सिडरी बुक्स थे, ध्यान देना। अगर आप आपके स्क्रीन पे ठीक से देखते हो तो यहाँ पे लिखेगा, ध्यान देना। ट्रांजैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रूटीन पेटी कैश पेमेंट्स। वो किसमें रिकॉर्ड हो गए? पेटी कैश बुक में। रूटीन पेटी एक्सपेंसेस, मतलब सपोज मैं हेड कैशियर हूँ, तेरा नाम दर्शना, एंड शी इज द पेटी कैशियर, तो हम दोनों हमारे इसमें डिवाइड कर लेंगे कि यू लुक आफ्टर द स्मॉल एक्सपेंसेस, आई विल लुक आफ्टर द बिगर एक्सपेंसेस एंड ऑल रिसीट्स। तो आगे से जो ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करेगी वो मैं नहीं करूंगा, और जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो नहीं करेंगी। नहीं तो ऐसे को दोनों पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम लोगों ने डिवाइड किया कि कैश एक्सपेंसेस रूटीन वाले तेरे पास रहेंगे, बाकी मेरे पास रहेंगे। रिसीट्स आई विल रिकॉर्ड, बिग पेमेंट्स आई विल रिकॉर्ड, तो रूटीन वाले पेमेंट्स रिकॉर्ड कर, ठीक है। दैट इज सो रूटीन पेटी कैश पेमेंट्स विल बी रिकॉर्ड इन द पेटी कैश बुक। ऑल अदर पेमेंट्स, तू जो पेमेंट्स नहीं करेगी उसके सिवा जो रहेंगे वो मैं करूंगा। एंड ऑल रिसीट्स कैश एंड बैंक मल्टी कॉलम कैश बुक वो मेरे पास आएंगे, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू बिल्स एंड अदर ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड टू गुड्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक। रिलेटेड टू बिल्स, बिल्स पेमेंट 12th में चैप्टर है 15 मार्क का। अदर ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अदर बुक इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। वो किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। यहाँ पे वो लिखा नहीं मैंने। सो व्हाट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमने किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। व्हाट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। प्राइमरी बुक्स को बोला जाता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री, एंड सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट को बोला जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। और उसमें सेकेंडरी एंट्री या फाइनल एंट्री, उसमें लास्ट एंट्री होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनल अकाउंट बनेंगे। बट वो एक्चुअली लेजर इज द लास्ट बुक वैसे देखा जाए तो। सो प्राइमरी बुक्स जो आपके जर्नल है वो कैश बुक रहेगा, जर्नल प्रॉपर रहेगा, एंड उसको डिवाइड किया मैंने, समझा। एंड सेकेंडरी बुक्स का कौन सा होता है? लेजर। ऐसे
पेटी कैश बुक दो टाइप्स के, देखो मेन कैश बुक सिंपल कॉलम, सिंगल होना चाहिए, नहीं सिंपल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब उसमें एक ही कॉलम होगा, कैश अकाउंट सिंपल वर्ड्स में। डबल कॉलम कैश बुक एंड मल्टी कॉलम कैश बुक। पेटी कैश बुक दो टाइप्स के, एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम, मैंने जो है वो लिख दिया मैंने, एंड दीज आर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। आगे सोर्स डॉक्यूमेंट देखो, परचेस बुक में इनवर्ड इनवाइस, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवाइस, बराबर ना, वहां पे रहेगा उसके नीचे सब्सिडी बुक्स में। परचेस बुक में इनवर्ड इनवाइस, परचेस बुक में इनवर्ड इनवाइस, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवाइस, परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट, बराबर। कैश बुक में रिसीट, कैश मेमो और वाउचर, पेमेंट के लिए वाउचर एंड रिसीट्स के लिए रिसीट्स, ठीक है। रिसीट साइड पे रिसीट रहता है और पेमेंट साइड पे वाउचर रहता है। जर्नल प्रॉपर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, अब कौन सा ट्रांजैक्शन उसके हिसाब से रहेगा, राइट। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट। इसमें आरडी नहीं लिया मैंने, लेकिन आरडी भी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये टेबल एक बार पढ़ लेना, समरी वाला, ये मैंने लिया है, मतलब सिखाते सिखाते, ठीक है। तुम लोग का कितने बजे स्कूल, 12, 13 बनकर से 13, 11 बजे, 11:30, 10, 11:30, 11, ठीक है। मैं अकॉर्डिंगली हम 10 बजे छोड़ेंगे, 8 to 10 रहेगा। वन डे अकाउंट्स, वन डे मैथ्स, वन डे अकाउंट्स, वन डे मैथ्स, ठीक है। जिनको ऑनलाइन करने ऑनलाइन करने दो, बट अगर मैंने उनको भी बोला है, क्योंकि जो बाहर के बच्चे कभी ना कभी तो पुणे में आना है, जितने जल्दी आएंगे उतना बेटर है, क्योंकि बेटर है इन द सेंस व्हाट कि आप यूज्ड टू हो जाओगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम बाहर रह रहे तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, आई नो। तुम लोग रोते नहीं ना एक दूसरे के साथ? मानसी मानसी नहीं रोएगी, मुझे लगता है ये रोती होगी, नहीं ना? नहीं, कैसे फर्स्ट टाइम बाहर रहे थे तो रोते हैं, इसलिए मैंने बोला। ऐसे कुछ नहीं मैडम, क्या होता है, हर कोई कभी ना कभी तो बाहर रहना है, सो और तुम्हारे लिए रह रहे हो ना, घर वालों ने थोड़ी फोर्स करके रखा है, तुम लोगों की इच्छा है पुणे में आके सीखना है, तो ऑब्वियसली तो रोना तो नहीं चाहिए। मम्मी पापा आके गए एक बार फिर या नहीं? कल संडे, ऐसे दूर नहीं तुम्हारा, हाईवे से आना है। हाँ बराबर, हाँ घर, और फिर संडे छोड़ने आए थे वो, हाँ ठीक है ना, चलता है मैडम, उतना कुछ नहीं। मेरा फ्रेंड था, इज सीए टुडे, मतलब 11th में मैंने उसको स्कूल में कम देखा होगा, कॉलेज में वो हमेशा घर जाता था, ऑलमोस्ट आता था, 4-5 दिन रुकता था, फिर 2-3 हफ्ते घर जाता था। होता है, इससे कुछ नहीं है मैडम, दिस इज वेरी कॉमन, कि अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली जाओ, अगर टाइम नहीं मिलता है, नहीं गए तो भी चलता है, कुछ नहीं। 12th में ऑब्वियसली कम हो जाएगा आप लोगों का, बिकॉज शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, सब चीजें, बाय द टाइम यू विल आल्सो गेट यूज्ड टू द न्यू प्लेस। इनको भी डिफिकल्ट रहता है, खाली ये घर में रहते हैं, कॉलेज नया है, फ्रेंड्स नए रहते हैं, ठीक है। चलो आज रुकते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।